Hello everyone, welcome back to another video. So hope everybody is doing well and fine in their life. So let's just start this session. In this session, we'll be discussing about Hello everyone, welcome back to another video. So in this lecture, we'll be discussing about uh, Hello everyone, welcome back to the video. In this video, we'll be discussing about top 100 MCQs for the OOPS, in which we will be discussing generic function, polymorphism, inheritance, encapsulation, inheritance, abstraction, and many more other things that does belong to the object-oriented programming language using C++. So let's start without wasting our time. Question number 1, we have generic function in C++ is implemented using template. Okay. जेनेरिक फंक्शन जो होता है बेसिकली उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं टेम्पलेट के थ्रू. ठीक है. टेम्पलेट फंक्शन इज यूज्ड फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग. ठीक है. दे आर बोथ आर काइंड ऑफ रिलेटेड टू ईच अदर. ओके. कीवर्ड यूज फॉर टेम्पलेट. टेम्पलेट के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? टेम्पलेट कीवर्ड एक होता है. function template allows, what does it allows? Function template basically allows multiple data types of function are going to be similar, but the parameter, the value, yeah, return type can be template. That means return type can be anything, any data type you can take, right? And also parameter, you can choose your own parameter accordingly, right? Function overloading means क्या होता है? Function overloading means same function with different parameters. So this is called the function overloading. Okay, overloading is an example of what? तो ओवरलोडिंग किसका एग्जांपल होता है? ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का होता है. फंक्शन ओवरलोडिंग डिपेंड्स किस पे करता है? तो बेसिकली पैरामीटर पे डिपेंड करता है. पैरामीटर डिफरेंट रहेगा तो उसी के बेसिस पे ये एग्जीक्यूट होगा. कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, डिपेंड्स एक्चुअली उसी पे. व्हिच कैन नॉट बी ओवरलोड फंक्शन. कह रहे हैं कि which cannot overload function. which कौन सा फंक्शन ओवरलोड नहीं हो सकता? डिफरेंट पैरामीटर का हो सकता है, सेम नेम का भी हो सकता है, बट पैरामीटर अगर सेम होगा तो ये नहीं है, वैलिड नहीं है. फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ही है सेम फंक्शन विद different parameters, and if you don't have different parameters, meanwhile your parameters are same, so that means this is not a function overloading. Okay. Function overriding occur when occur derived classes में. Okay. So basically function, here one thing I'm telling you. So basically function overloading happens in the inheritance. Okay, this is the topic of inheritance, and function overloading, this is the topic of what? Polymorphism. Sometime you will be thinking that function overriding is kind of types of what? Polymorphism. This is a runtime polymorphism, right? So this is also kind of related to the runtime polymorphism, I mean inheritance polymorphism, but that happens into the inheritance when you create a base class and then derived class inherited. So that time also that happens. Okay. So question number 10 we have overriding is what? So overriding क्या होती है? This is runtime. Overriding क्या होती है? Function overriding virtual function, this is runtime polymorphism. Okay. Function overriding require क्या करता है? Same parameters को. Overriding support किसको करता है? You have to tell me overriding supports what? Encapsulation, runtime polymorphism, overriding तो runtime polymorphism है ना? Runtime polymorphism is achieved by through what? Function overriding. Okay. Next question we have question number 14. Runtime polymorphism uses किसका uses करता है? So dynamic binding का करता है. So basically dynamic binding का करता है. मैंने बोला था ना कि जो static या early binding होती है वो बेसिकली किस में होती है? यूजेस करी जाती है डायनेमिक पे, एंड दिस वन इज डूइंग इनटू द स्टैटिक. दिसको स्टैटिक या लेट बाइंडिंग भी आल्सो वी विल बी कॉलिंग इट. ओके. Virtual function is used for what? Virtual function is used for runtime polymorphism, right?
Runtime polymorphism. In the runtime polymorphism, we have virtual function. This is what virtual input. Virtual is keyword. Okay. So next question we have keyword for virtual function. Virtual function keyword is virtual itself. Okay. Okay. Next question we have multiple inheritance means. Multiple means multiple base classes in a single derived class. Okay. Main problem in multiple inheritance. So in the multiple inheritance, what the main problem that you'll be facing actually? So the answer would be speed. No. Ambiguity. This question is already have been discussed. Okay. Option number B is correct. Ambiguity is solved using. Ambiguity को solve कर सकते हो resolution operator के through. Scope resolution operator ये होता है. Okay. टेम्पलेट इज यूज फॉर व्हाट? टेम्पलेट जेनेरिक फंक्शन के लिए, जेनेरिक क्लास के लिए यूज करते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज व्हाट? कोड रीयूजेबिलिटी. बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट used into the inheritance actually, so that's why reusability is used here. Okay. Question number 23, we have function name overloading is what? Function overloading, just keep it in your mind, this both word whenever it used like function overloading, what you have to do, you have to just think like same function with different parameter. Okay, this is called function overloading. Overloading is resolved at compile time. Okay. Overriding is resolved at, you can resolve overriding by using what? By using runtime polymorphism. Okay. Next question we have template function is what? Template function is generic function. Okay. What support polymorphism? Polymorphism को कौन सपोर्ट करता है? तो OOPS ही करता है. जो OOPS को करता होगा वो तो करता ही होगा, क्योंकि ये उसी का बेसिक 4 पिलर है इम्पोर्टेंट. फंक्शन ओवरलोडिंग किसको इम्प्रूव करता है? फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्रूव्स व्हाट डज इट इम्प्रूव? सो ये रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है. मल्टीपल इनहेरिटेंस इज व्हाट? मल्टीपल इनहेरिटेंस इज कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स होता है ना मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि उसमें बहुत टफ हो जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी किस क्लास के थ्रू आप इनहेरिट कर रहे हो. सिंगल चाइल्ड है, सिंगल डिराइव्ड क्लास है हमारे पास, सो दैट वुड बी अ लिटिल बिट ट्रिकी, लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. ओके. Virtual function belongs to what? Runtime polymorphism. Okay. I think this question was easy, isn't it? Yeah, it is. Actually, generic function uses किसका यूज करता है? टेम्पलेट का. कीवर्ड इज मैंडेटरी इन टेम्पलेट. तो टेम्पलेट के लिए आप टेम्पलेट कीवर्ड ही होता है, यू हैव टू यूज इट. ओके. ओवरलोडिंग इम्प्रूव किसको करता है? ओवरलोडिंग जब करते हो तो ये किसको? फ्लेक्सिबिलिटी को करेगा. ठीक है. ओवरराइडिंग इम्प्रूव किसको करता है? तो करता किसको हुई होगा? रन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी. Question number 35, we have multiple inheritance can cause what? What can it cause? Diamond problem. Sometimes they will asking you diamond problem uses which kind of the inheritance, then you will be, you will be correct option. Which option you have to correct? That's a multiple inheritance. Okay. So the multiple inheritance would be the correct answer. Generic programming is based on what? Template. This would be the B option. Okay, not the D ones. Next question we have for function template works for. फंक्शन टेम्पलेट जो यूज होता है मल्टीपल टाइप के लिए यूज होता है. यहाँ पे टाइप को क्या टाइप क्या है? टाइप इज रिफर्स टू डेटा टाइप. ठीक है. डेटा टाइप, अबाउट डेटा टाइप विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हिच इज नॉट अ टेम्पलेट टाइप. तो फंक्शन टेम्पलेट होता है, क्लास होता है, जेनेरिक टेम्पलेट, ऑब्जेक्ट टेम्पलेट कुछ नहीं होता. क्योंकि ऑब्जेक्ट टेम्पलेट क्या है? ऑब्जेक्ट टेम्पलेट ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इनसाइड क्लास विल बी डिक्लेयरिंग आवर ऑब्जेक्ट. तो ये तो क्लास के अंदर ही हो जा रहा है कवर ना, तो इसलिए ये कोई टेम्पलेट जो क्लास टेम्पलेट है ये कोई टेम्पलेट नहीं होता. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास टेम्पलेट इज यूज फॉर व्हाट? क्लास टेम्पलेट किसके लिए यूज होता है?
जेनेरिक क्लास के लिए। ओवरलोडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओवरराइडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये सब तो पता ही होगा, बेसिक मैंने करा रखा है क्वेश्चन ऑलरेडी, राइट? विच सपोर्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कौन सा सपोर्ट करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को? तो वर्चुअल फंक्शन करता है, ओके। Which keyword is used for overriding? Overriding के लिए which keyword you will be using? That would be the virtual keyword. Okay. So base class pointer can point to. Base class pointer किसको point करता है? Base class pointer basically points to one base class object या base class object. Derived class point करने का मतलब ये inherit किसके थ्रू हो रहा है? कौन इसको कर रहा है point? कौन इसको इनहेरिट कर रहा है? ठीक है, तो बेसिकली डिराइव्ड ही इसको इनहेरिट कर सकती है, नॉट एनी अदर क्लास कैन बी डन दैट थिंग, ओके। व्हिच फंक्शन इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम? रन टाइम के थ्रू कौन सा रिजॉल्व हो सकता है फंक्शन? तो आपको पता होगा ओवरराइडिंग होता है ना, ओवरलोडिंग तो कंपाइल टाइम के थ्रू होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस इंक्लूड्स क्या करते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता क्या है, बेसिकली होता क्या है, टू और मोर बेस क्लासेस होते हैं ना, वही चीज होती है। अगर टू एंड मोर ड्राइव्ड क्लासेस होती है, एक पेरेंट क्लास होती है, तो उसको बोलते क्या है? हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ओके। डायमंड प्रॉब्लम अकर किसमें अकर होती है? तो ये अकर होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, ठीक है। 48 number question we have, diamond problem is solved by what? Diamond problem solved by virtual inheritance, ठीक है। Template specialization is what? Template, same template for all? No, no, no. Specific implementation for types. Here type means data type, okay. So question number 50 we have, generic function reduce किसको करता है? रीयूज को नहीं, रीयूज को तो नहीं करता, ये तो इनहेरिटेंस करता है। डुप्लीकेशन को करता है एक्चुअली, मतलब आप बार बार सेम डेटा टाइप ना लो, ठीक है। आप डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसे आपको दो तीन वैल्यूज आपको लेनी है, इंट के लिए लेनी, फ्लोट के लिए लेनी है, एंड मे बी कैरेक्टर के लिए लेनी है, तो आप बार बार सेम कोड मत लिखो, एक ही बार लिख के आप तीनों को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो डुप्लीकेशन मतलब आपको बार बार वही चीज को नहीं लिखने की नीड है, सेम कोड को लिखने की नीड नहीं है। But this is kind of different from the inheritance. You have to understand the inheritance, that reusability and code duplication is kind of different, okay. So code duplication का मतलब हो गया कि kind of your signature is gonna be similar. So जब signature आप करते हो ना, मतलब आप जब function declare करते हो, this is called the signature, okay. So function declaration, you don't need to declare your function a lot time, rather just declare at once while using template and generic functions. So that is why duplication is actually what exactly it does, it means, okay. So next question 51 means को function overloading require किसको करता है? Function overloading basically same name different parameter. 52 question we have done with 50% question, 50 questions we have done, and yeah, we have remaining 50 questions. So yeah, let's start from this as well, okay, without even wasting our time. Which is checked at compile time? Compile time के ड्यूरिंग कंपाइल टाइम विच इज चेक्ड कह रहा है, ओके। तो कंपाइल टाइम ओवरराइडिंग ही होता है, नहीं नहीं, कंपाइल टाइम कह रहा है, सॉरी, ओवरलोडिंग होता है। सो यू हैव टू अवॉइड द नॉइस, और आई डोंट से कि अवॉइड करना चाहिए। चिड़िया आ रही है बैकग्राउंड में, चिड़िया की वॉइस आ रही है, जो कि एक्चुअली बर्ड्स आर चिर्पिंग, इट इट एक्चुअली feels so natural, so I don't think so that is disturbing you everyone, but yeah, I like it. Which is checked at run time? रन टाइम के चेक किसको करता है? ओवरराइडिंग को करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो मेक श्योर जो आंसर लिखा है वही करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे बाय मिस्टेकली इसको कर दे रही हूँ, सो यू हैव टू अवॉइड दिस वन, दैट दिस इज नॉट गोना बी आंसर, आंसर इज ऑलरेडी रिटन आफ्टर ऑल द ऑप्शंस, ओके, बिलो ऑल द ऑप्शंस एक्चुअली। सो टेम्पलेट इंप्रूव किसको करता है? फ्लेक्सिबिलिटी को करता है, ओके। वी हैव बीन डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल प्रीवियस, ओके। विच इज नॉट पॉलीमॉर्फिज्म टाइप। पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप कौन सा नहीं है? तो स्टैटिक मेमोरी नहीं है। फंक्शन नेम ओवरलोडिंग मीन्स क्या होता है? सेम नेम डिफरेंट फंक्शंस। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज व्हाट? कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 58 वी हैव पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म वही टेम्पलेट तो होता है जिसमें आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर यू कैन टेक बाय योर चॉइसेस, whatever, and I mean which parameter do you actually want, you can do that, okay.
मल्टीपल इनहेरिटेंस इंक्रीज किसको करता है? कॉम्प्लेक्सिटी को करता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इज व्हाट? दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। वर्चुअल फंक्शन इनेबल किसको करता है? आपको पता होना चाहिए। रन टाइम बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। दिस इज ऑल अबाउट द रन टाइम बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, बेस क्लास फंक्शन इज ओवरराइड इन। बेस क्लास किसको करता है ओवरराइड? डिराइव्ड को ही करेगा, कॉमन सेंस ना। टेम्पलेट बिलोंग्स टू व्हाट? टेम्पलेट किससे बिलोंग करता है? टेम्पलेट्स बिलोंग्स टू टेम्पलेट बिलोंग्स टू जेनेरिक प्रोग्रामिंग। ओके, मतलब जेनेरिक प्रोग्रामिंग को टेम्पलेट बिलोंग करता है। ओवरलोडिंग इंप्रूव किसको करता है? तो ओवरलोडिंग एक्चुअली इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, ओवरराइडिंग इंप्रूव किसको करता है? ओवरराइडिंग इंप्रूव रन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज व्हाट? मल्टीपल इनहेरिटेंस इज सिंपल। ओके, विच इज नॉट हुक फीचर। हुक का फीचर कौन सा नहीं है? तो ये कंपाइलेशन इसका फीचर नहीं है। जेनेरिक फंक्शन इज व्हाट? मतलब कंपाइलेशन थोड़ी होता है, टेम्पलेट भी होता है। इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, 3-4 होते हैं। टेम्पलेट भी होता है बट कंपाइलेशन नहीं होता है। ये इसके वजह से, बिकॉज कंपाइलेशन तो कंपाइलर करता है। कंपाइलर इज व्हाट? इट इज ट्रांसलेटर। ओके, not it doesn't belong to the hoops and all. Okay, so जेनेरिक फंक्शन क्या होता है? बेसिकली टाइप डिपेंडेंट होता है ना, टाइप इंडिपेंडेंट होता है। जेनेरिक फंक्शन में आपको डेटा टाइप नीड नहीं होती लिखने की। जब भी आप जेनेरिक फंक्शन यू आर क्रिएटिंग और जेनेरिक क्लास यू आर क्रिएटिंग, देन यू डोंट नीड टू write down its data type. Rather, you just have to write down the template, and then after that, you just need to write down your generic function. So this is what generic function, generic class stand for. In the generic class, generic function, what happened is you don't have to worry like which kind of the data you have to choose. Actually, you can choose accordingly. Okay. So next question we have, function template is declared किसके थ्रू? यूजिंग क्या? यूजिंग टेम्पलेट। ओके, ओवरलोडिंग हैपेंस इन कंपाइल टाइम। ओके, ओवरराइडिंग हैपेंस इन रन टाइम। व्हिच सपोर्ट्स रीयूजेबिलिटी बेस्ट? रीयूजेबिलिटी को कौन सपोर्ट करता है अच्छे से? तो करते हैं, सभी ही करते हैं, क्योंकि देखो ओवरलोडिंग में भी आप रीयूज करते हो ना। ओवरलोडिंग में आप रीयूज किसको करते हो? फंक्शन नेम को करते हो, अगेन एंड अगेन सेम यूज कर रहे हो, पैरामीटर चेंज कर रहे हो, तो कर तो रहे हो आप रीयूज ना। तो कह रहे हैं इनहेरिटेंस में भी करते हो। इनहेरिटेंस तो बेसिकली है ही पूरा रीयूजेबिलिटी के लिए, और टेम्पलेट में भी करते हो, और डेटा टाइप को या फिर जेनेरिक फंक्शन को रीयूज करते हो। ठीक है, जेनेरिक फंक्शन है, जेनेरिक क्लास जो भी है, आप उसको रीयूज करते हो। ठीक है, सो विच इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कह रहा है कि कौन सा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। सो ओवरलोडिंग इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। 74 क्वेश्चन पे आते हैं विच इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ओवरराइडिंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। टेम्पलेट आर यूजफुल फॉर व्हाट? जेनेरिक एल्गो। जेनेरिक एल्गो के लिए टेम्पलेट आर यूजफुल। ओके, सो मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रॉब्लम कह रहे हैं कि क्या होती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है? प्रॉब्लम में एम्बिग्विटी होती है, कंफ्यूजन होता है काइंड ऑफ, कि ये एक्चुअली ये चाइल्ड किस बेस क्लास से डेवलप्ड है, because they have many parent classes, many base classes, so that actually ambiguity creates. Okay, that creates ambiguity actually. So we have been also go through these questions previously. Okay, so okay, एम्बिग्यूटी रिजॉल्व किसके थ्रू करते हैं? ये भी क्वेश्चन वी हैव बीन डन विद दिस एज वेल। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज व्हाट? डबल कॉलन। ओके, function overloading depends on what? Function overloading basically depend on the parameter. Okay, so basically B is correct answer. Okay, I actually trying to correct the B option but I didn't do that, so yeah, sorry for that. वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर किसके थ्रू होता है? बेस क्लास के। ऑलवेज जब भी आपको यू हैव टू डिक्लेयर द वर्चुअल फंक्शन, यू विल बी डिक्लेयरिंग इनटू द बेस क्लास, नॉट टू यूजिंग डिराइव्ड क्लास. ओके, and yeah, you can derive into the base class virtual function using virtual keyword. Okay, we'll be also discussing about the virtual function, what is exactly is. पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म यूजेस किसको यूज करता है बेसिकली? तो ये करता है टेम्पलेट को है. ओके, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स किसको करती है? सी प्लस प्लस बेसिकली तो सपोर्ट तो को करती है प्रोसीजरल
दोनों को करती है। तो बेसिकली जो प्रोसीजर लैंग्वेज है वो सी है, ठीक है। तो सी का एक्सटेंशन सी प्लस प्लस है। दैट मीन्स आप जो है ना सी प्लस प्लस अगर आप यूज कर रहे हो, ओके, if you are using C++, then you know what, you are using C++ ना, then what I was saying is yes yes yeah, so आप दोनों ही यूज कर सकते हो, okay, that what I mean to। फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्रूव किसको करता है, तो बेसिकली दैट इम्प्रूव्स द रीडेबिलिटी, ओके। ओवर राइडिंग इंप्रूव किसको करता है, तो ये करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ओवरलोडिंग आता है देन यू विल बी गोइंग विद द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एज वेल। टेम्पलेट रिड्यूस करता है डुप्लीकेशन को, बेसिकली नॉट जस्ट टेम्पलेट बट आल्सो जेनेरिक जो फंक्शंस होते हैं, जेनेरिक क्लासेस होती हैं, दैट आल्सो डू द सेम स्टफ बिकॉज they are kind of dependent on the template tool. Template is a tool, and as you actually use the header like and iostream has include iostream, now like that you have to actually use the template as well. So template is a tool that reduce the code duplication, like you don't need to write down same code again and again. This is not reusability. So reuse means you are reusing the same stuff, but here no not at all. You just have to write down at a once, and then you can give through a lot of data types you can add in here. You can go through and you can check it out, okay। जेनेरिक फंक्शन का मीन पूछ रहा है, व्हाट जेनेरिक फंक्शंस मींस। 85 क्वेश्चन अबाउट जेनेरिक फंक्शंस मीन एनी टाइप। Generic function, yeah, any type. I mean, your type is here data type. Okay. Multiple inheritance is what? Multiple inheritance is many base classes. Okay. Virtual function support किसको supports करता है? डायनेमिक बाइंड को। तो वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, रन टाइम में होता है ना। तो रन टाइम में भी जो होता है स्टैटिक और लेट बाइंडिंग, ठीक है। नो, डायनेमिक और लेट बाइंडिंग और व्हाट डज इट कॉल, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। Overloading is resolved by which? So overloading is resolved by compiler. Yes, compiler. Because compile time means it will be using compiler, okay. And for the run time, that it might use code runner, okay. Overloading is resolved by what? Runtime system, okay. Templates are what? Templates क्या होते हैं? टाइप सेव, टाइप फिक्स, नो टाइप, टाइप सेव। किसी भी डेटा टाइप के लिए आप सेफली यूज कर सकते हो। फंक्शन ओवरलोडिंग इज व्हाट? फंक्शन ओवरलोडिंग सेम नेम डिफरेंट आर्गुमेंट्स। ARGS means arguments, okay, you have to keep it in your mind. Operator overloading is what? Change operator meaning, which is generic। जेनेरिक की बात आएगी ना तो आप टेम्पलेट पे ही चले जाना। Wherever it will asking you that generic function, generic template is related to what? So you have to just close your eyes and take the correct answer for the template, because template is gonna be the correct answer, okay. Next 94 question, we have multiple inheritances supported in what? Multiple inheritance is supported in C++, okay. वर्चुअल फंक्शन इनेबल करता है किसको? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को, ओके, नॉट लूप। दिस इज द बी इज ऑप्शन करेक्ट, ओके। द क्वेश्चन इज ऑलरेडी रिपीटेड, सो नो नीड टू वरी। फंक्शन ओवरलोडिंग इज व्हाट? कंपाइल टाइम। फंक्शन ओवरराइडिंग इज व्हाट? रन टाइम। टेम्पलेट इंप्रूव्स किसको करता है? फ्लेक्सिबिलिटी को, ओके। 99 क्वेश्चन भी है। C++ पॉलीमॉर्फिज्म टाइप्स कितने होते हैं? तो 3 होते इसलिए हैं क्योंकि इसने जो है ना पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म को भी ले लिया है। बट आप जा सकते हो 2 के साथ, अगर 3 दिया है तो आप 3 के साथ जाना, क्योंकि पैरामीट्रिक पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो टाइप्स ऑफ polymorphism, okay। So last question we have main advantage of unit। So basically this is error। inheritance का concept पूछ रहा है, ठीक है। inheritance का concept पूछ रहा है कि उसका advantage क्या है इस concept में, तो आप reusability flexibility के लिए जाओगे। अब यूनिट 4 की बात ही कर लेंगे हम। यूनिट 4 में हमारा हेडिंग था क्या? तो बेसिकली ये जो सारे क्वेश्चन है यूनिट 4 के हैं, ठीक है। और मैं बता देती हूँ कि यूनिट 4 में क्या है, क्या टॉपिक है। तो कह रहे हैं कि यूनिट 4 बेसिकली कवर क्या करता है। तो इसमें बेसिकली जेनेरिक फंक्शन था एंड पॉलीमॉर्फिज्म था, ठीक है। बेसिकली इसमें जेनेरिक फंक्शन था
सो बेसिकली इसमें था क्या, इसमें हमने डिस्कस किया जेनेरिक फंक्शन के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो कह रहे हैं कि जो यूनिट 4 था जेनेरिक फंक्शन या पॉलीमॉर्फिज्म, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है। जैसे होता नहीं है कि कंक्लूजन या फिर एक मोटो कि हमें क्या समझने को मिलता है अगर हम इस यूनिट के गो थ्रू करते हैं इस यूनिट को, जिसमें हम, तो बेसिकली इसमें करता है कि रीयूज कर सकते हो, इनहेरिटेंस में तो करते ही हैं, इनहेरिटेंस में तो करते ही है ना, and flexibility, it provides actually kind of flexibility. So we have done with the 100 questions also. Okay, so do let me know how was your experience was and how many questions did you correct. Okay, also tell me what the next topic that you actually want, on which I have to create the video and all. Okay, so also we have been other questions as well. We'll be going through this playlist, we'll be uploading a lot of videos as soon as it can be possible. Okay, so yeah, that's all in this video. Hope you enjoy the session, and yeah, that's all. And do let me know how was your score was, and कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो अच्छे से, ठीक है। ऑल्सो टेल मी दिस थिंग। ओके, मतलब आप इम्प्रूव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, कब कर पा रहे हो तो क्या इम्प्रूव कर पा रहे हो, क्या पहले कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, एंड नाउ व्हाट्स योर स्कोर। सो आई highly want to know actually, this is highly eager, I'm highly eager to know how was your score was, and now how much it is. Okay, out of 100 you can tell me in the comment section, out of 100 how many percent did you correct. So that was not that much tough basically, because this is simple kind of easy topic, but you have to watch this video again. Once you watch this with the answer, right, I have already explained, like मैंने explain करा है, तो आप lecture एक बार आप lecture ऐसे randomly देखना है, and then again जब second time you will be watching this, then आप ट्राई करना खुद से आंसर करने का। ओके, खुद से आंसर करने का कि आप कितना करेक्ट कर पा रहे हो, क्या आप 100 आउट ऑफ 100 तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपको रिवीजन करते रहना है, because this is something that is important for the generic function polymorphism. So we'll be going through for the unit 5 as well in the later on video. So that's all in this lecture. Hope you like the lecture and enjoy the session. So do like this channel, subscribe, and yeah, share with your friends, colleagues, and many more, with family member as well, so that they can also revise the topic as well. Okay, so that's all in this lecture. Bye bye, see you in the next lecture. Have a nice day ahead, and yeah, that's all. Bye.